Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter and the topic is subject verb agreement. I hope you all do know about this subject verb agreement. What is subject verb agreement? Subject verb agreement means that the verb of any subject agrees to the subject and then it forms a correct structure. Now, as we can see, some examples are given here. Some pests eats the leaves and ruins the plants. So we have learnt in the previous classes, earlier basic classes, that first person singular number and plural number takes first person singular number takes singular verb, that I am, and first person plural number takes plural verb, that is we are, right? So this is a combination. This is called agreement with the subject. So suppose if I am telling you Ram are boy, is it a correct sentence? You can answer this in the comment section. No, it is not correct. Why? Because Ram is third person singular number and it takes a singular verb, that is. So this is wrong. Ram is a boy, right? So this is called subject verb agreement, that every subject, every verb is having agreement to form a correct structure in accordance to write down a grammatically correct sentence, right? So now let us move and read what is in this topic. So it says the main verb finite means निश्चित, जो main verb होता है हमेशा finite होता है. In a sentence must agree with the subject of the sentence in number and persons. I've given example now, just few moments back, that Ram is a boy, right? Now it says when the subject is a noun or pronoun, when the subject is a noun or a pronoun, the verb takes a form which agrees with its person and number. We have seen earlier. Now another point says that when the subject is a phrase or a clause, the verb takes a form which agrees with the third person singular. For in support of these points, we will go through the examples. When the subject is a noun or pronoun, let us go through the first example. My aunt and uncle live in Florida, right? It is saying my aunt and uncle live in Florida. So it is agreeing that my aunt and uncle both are what? Both are either subject or noun or pronoun in the sentence. And since it is plural, right? So plural subject always takes singular verb, right? Now next is swimming on a full stomach is not advisable. Swimming on a full stomach is not advisable. Swimming on a full stomach is like a phrase. It is not even clause. I'll clear in the next class when I'll teach you a phrase and clause. What are the phrases and clauses? Phrase are, a group of sentences which do not have a finite verb, a main verb, and which does not make complete sense. However, the clauses are a group of sentences which do have a main verb and it makes sense also, right? So swimming on a full stomach is a phrase because it is not making complete sense and it do not have a main verb also. Is not advisable, right? Now the next example, what makes me sad, is there in reference to the announcement. So let us see another thing now. What is next? That is compound subjects.
नाउ कंपाउंड मीन्स मिश्रण, कंपाउंड मीन्स मिक्स करना दो चीज़ों के। सो इट माइट बी लाइक किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट? तो हम उसको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। लेट अस सी, अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर नाउन्स। जब कंपाउंड सब्जेक्ट होगा तो उसमें एक से ज़्यादा नाउन्स होंगे, दैट मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा नाउन होंगे, या प्रोनाउंस हो सकते हैं, और दोनों जो है कनेक्टेड होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है, एंड इट इज कनेक्टेड बाय कंजंक्शन, राइट? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस एंड, बट, और। हम देखते हैं उसमें सपोर्ट में पॉइंट्स क्या है, द रूल्स। व्हेन 2 nouns और pronouns are connected by and, the resulting compound subject takes a plural verb। ये कहता है कि जब 2 नाउन या प्रोनाउन एंड कंजंक्शन से अगर जुड़ता है तो जो सब्जेक्ट है वो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। संजय एंड राजेश, एग्जाम्पल फॉर वी कैन सी संजय एंड राजेश। तो ये 2 नाउन है और दोनों किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये, सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, दैट इज हैव। तो ये पहला रूल है, आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट रूल सेज अ कंपाउंड सब्जेक्ट दैट रेफर्स टू वन आइडिया, पर्सन और थिंग और टू समथिंग कंसिडर्ड एज वन यूनिट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब एक कंपाउंड सब्जेक्ट जो है, जो किसी एक आइडिया के बारे में बात करता है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, किसी एक चीज़ के बारे में बात करता है, या टू समथिंग कंसीडर्ड एज वन यूनिट, या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसको हम एक यूनिट माने, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। इन सपोर्ट ऑफ दिस रूल वी हैव टू गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। लेट अस सी द एग्जाम्पल। द फेमस पोएट, philosopher and mathematician Bill Roper has arrived। Now see क्या क्या है, एक फेमस पोएट, फिलोसफर भी है, मैथमेटिशियन भी है, ठीक, और उन बिल रॉपर एक खुद से जो है। तो इतने सारे चीज़ हैं, सारे जो है क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है ना, एंड से जुड़ा हुआ है, और एक यूनिट के बारे में बात कर रहा, तो इसने जो है सिंगुलर वर्ब लिया, दैट इज हैज़। क्लियर? नाउ विल मूव टू द अनदर पॉइंट। अ कंपाउंड सब्जेक्ट मेड अप ऑफ प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस दैट आर कनेक्टेड बाय or nor takes a plural verb। I'm reading it again for you. You try to understand it. Okay? A compound subject made up of plural nouns or pronouns that are connected by or nor। तो कहता है कि कंपाउंड सब्जेक्ट जो है किस चीज़ से बना होता है, प्लूरल नाउन से बना होता है। जैसे म्यूजिशियंस प्लूरल नाउन है, परफॉर्मर्स ये भी प्लूरल नाउन है, और दोनों सब्जेक्ट है, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। और ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एंड कनेक्टिंग कंजंक्शन है। तो ये किस तरीके का वो लेगा, जो वर्ब है वो लेगा आर। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स जो है, कंपाउंड प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ये आपको याद रखना है। ये इस रूल का रिजल्टिंग है। नाउ नेक्स्ट rule, a compound subject made up of singular nouns and pronouns that are connected by or nor takes a singular verb। पिछले में क्या था, एक कंपाउंड सब्जेक्ट जो 2 प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस से बनता था और जुड़ा होता था, वो प्लूरल वर्ब लेता था। लेकिन इसमें क्या है, सिंगुलर नाउन्स एंड सिंगुलर प्रोनाउंस से जो जुड़ा हुआ है वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अ म्यूजिशियन और अ डांसर, A musician or a dancer is often the most appreciated artist। तो म्यूजिशियन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डांसर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ, कनेक्टिंग कंजंक्शन है, तो इसलिए ये क्या ले रहा है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल nouns
that are connected by either or neither, nor and not only, but also the verb agrees with the noun which is close to it. इस पॉइंट में आपको समझना ये है कि कंपाउंड सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों से मिलके बना है, और वो किस चीज़ से जुड़ा है, आइदर से जुड़ा हो या फिर नाइदर से जुड़ा हो, नॉर या फिर नॉट ओनली से जुड़ा हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इट विल द वर्ब विल अग्री विद द नाउन विच इज़ क्लोज टू इट। जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के क्लोज में होगा। लेट अस गो थ्रू द एग्जांपल। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द स्कूल, यू कैन सी नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द स्कूल, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, और नॉर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे स्कूल के जो वर्ब है यहाँ पे वाज है, तो यहाँ पे वाज होगा या वर होगा, अगर वर होगा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्कूल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो ये जो है सिंगुलर वर्ब ही लेगा अकॉर्डिंग टू द वर्ब एग्रीज विद द नाउन विच इज़ क्लोज टू इट। तो क्लोज में यही है स्कूल, तो स्कूल के साथ में सिंगुलर वर्ब होगा, राइट। वी विल सी द अनदर एग्जांपल। आइदर शी और हर फ्रेंड्स आर, तो यहाँ पे देखिए आर इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स जो है प्लूरल है, राइट, क्लोज है इसलिए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नॉट ओनली माई पेरेंट्स बट ऑल्सो आई एम हैप्पी विथ न्यू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली माई पेरेंट्स बट ऑल्सो आई एम, तो एम इसलिए आया क्योंकि आई यहाँ पे क्लोज है, सो दैट्स वाई आई एम इज द हैप्पी विथ द न्यू स्कूल। सो डियर स्टूडेंट, this compound subject topic is completed. The rules into this, you can go through this errors which you have to find and correct it. You can correct it and send it in the assignment work. Now next point is the principle of proximity. Now what is principle of proximity? When the main part of subject is proximity, मतलब जो proxim होता है, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होता है, okay? तो कहता है द मेन पार्ट ऑफ द वर्ब इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय लार्ज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। व्हेन द मेन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय लार्ज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बी केयरफुल टू करेक्टली आइडेंटिफाई द हेड नाउन इन द सब्जेक्ट। कहता है जब मेन पार्ट जो मतलब सब्जेक्ट का जो मेन पार्ट होता है वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बना होता है और वो वर्ब से सेपरेट होता है, तो उस टाइम हम लोग कैसे करेंगे उसको सावधानीपूर्वक वो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। द रिसाउंडिंग एंड रिदमिक बीट ऑफ द ड्रम्स मेक्स माई हार्ट गोज फास्टर। नाउ यू कैन सी what is being talked about. The resounding and rhythmic beat of drums, right? अब इसमें कौन सा जो है आपको नाउन है, हेड नाउन है, इस सब्जेक्ट है, वो आपको ढूंढना है। तो बीट जो है द रिसाउंडिंग एंड रिदमिक बीट ऑफ ड्रम्स मेक्स, ड्रम्स है यहाँ पे थर्ड पर्सन, तो ये क्या ले रहा है, प्लूरल वर्ब ले रहा है, इट इज टेकिंग प्लूरल वर्ब। नाउ द नेक्स्ट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द 1000 meters climb was tough. The last stage of 1000 meters climb was tough. We can see here the main part, the main noun is stage, ठीक है, और एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके ग्रुप बना हुआ है, तो द लास्ट स्टेज was, ठीक है, सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब ले रहा है, यहाँ पे भी स्टेज सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ले रहा है। स्टेज इज द प्लूरल कॉमन कलेक्टिव नाउन। नाउ लेट्स सी स्पेशल केसेस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई थिंक this will be your next topic and we'll read it next day.
So dear student, I hope you have understood this taught topic completely, and if you are having any more question related to this, you may ask me in the comment box, or privately you can ask me the question. I'll reply the answer. So dear student, now we have reached to the end of today's session, and we'll meet again tomorrow. So till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you.